कौन सी डेटा टाइप्स पढ़ी हैं बच्चे? क्विकली, हाँ, मुझे आज थोड़े जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए आप। यस, अभी तक हम int, float, int, float, char, अभी तक अभी तक we have only encountered these three basic data types. Okay, what do you mean by data type? Data type basically refers to a extensive system used for declaring variable, functions or different types. आप लिखते हो ना int a this. So now what is this? This is a extensive system which helps in declaring your variable. So whenever you write something like that, your compiler will know that okay, this is a variable of integer type. Done? Done. Okay. So there are basically two categories of variable when you talk about. Okay. और ये हम सबको पता है कि when I declare a variable, वो कितनी space occupy करता है and how bit pattern is stored. Okay. So ये सारा हमारा data type के साथ associated होता है. Done. So basically I'm going to divide my data types into two categories. One is primary data types and second is derived one. In primary we have seen integer, floating point, float, character, and then there is another which we this void. Okay, void कहाँ पर देखा बच्चे आपने? कई लोगों ने देखा होगा कि इंटरनेट पर बहुत जगह लिखा होता है void main. Yes, a function. और अगर आप void main लिखते हो तो no need to return anything. वो ऑलरेडी नल हो जाता है ना, वो ऑलरेडी नल हो जाता है. डन, क्लियर. वैसे void का मतलब है बच्चे नॉर्मली टॉकिंग टू द नॉर्मल डेटा टाइप्स, void इज नथिंग. दैट मींस वी आर स्पेसिफाइंग we are not specifying any particular data type to that particular, but void हम extensively use करेंगे कहाँ पर? इन pointers में. ठीक है. सर जावा प्रोग्रामिंग में भी यूज होती है ना, void को ज्यादा यूज किया जाता है स्कैनर और बफर रीडर के साथ. कहाँ पर बच्चे? सर जावा प्रोग्राम्स में, जावा प्रोग्रामिंग में, हाँ, उसमें कर सकते. ठीक है. बट टॉकिंग अबाउट सी, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि void का हमारा मैक्सिमम यूज होगा पॉइंटर्स में. नॉट कमिंग टू द derived data type. Derived data types are which are derived from this. Okay, let's say आयुष ने बोला सर मुझे इंट का एक वेरिएबल चाहिए. डन, मैंने बोला ये लो. ठीक है. लेकिन रंजन ने बोला नहीं सर मुझे इंट के ना 5 वेरिएबल चाहिए. तो मैंने क्या किया? एक एरे बना दिया. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव सिंपली derived the basic data type to a array type. So we will study all these chapter by chapter in coming weeks. Done. So these come under. So this is the basic division of data types: primitive or primary, integer, char, float, double, and void. Now, what is the difference between float and double? Okay, बच्चे, float and double both are used to store your floating point variable like 3.25 like this. Okay, but the only difference is in float we store the data in 32 bits. In double we store the data in 64 bits. That's the only difference. Okay, and I'm not going to like put pressure on these things today. Done. चलो, तो सबसे पहले आ जाए मेरे पास रेंज. ओके, सो लेट्स से, चलो अब आपका चेक करते हैं आपने नंबर सिस्टम कितने अच्छे से पढ़ा है और आप कितने अच्छे से चीजों को इंटरप्रेट कर पा रहे हो. डन, लेट्स चेक. ओके यार, चलो. ओके, सो लेट्स चेक बच्चे. आपके पास नाउ लेट्स से यू हैव अ इंटीजर जहां पर आप where you are using only 1 byte to store your integer. So how many bits we have? 8 bits. 8 bits. 8 bits from 0 to 7, okay, or 1 to 8. Done. So how many different values I can store using these 8 bits? Let's talk about only positive values. So how many different combination I can get using these values? 256. ओके, जिसे नहीं समझ में आ रहा बच्चे मैं दोबारा बोल रहा हूँ. आपके पास 8 बिट है, यू हैव ओनली 1 बिट. हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन यू कैन गिव? 2. इफ यू हैव 2 बिट्स, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन you can give? 2 squared. 4. 4. So if I have 8 bits, I can give the 2 raised to power 8 different combination, and that is 256 different numbers you can represent using these 8 bits.
Okay, done. So when Yes. okay, now point arrives. Okay, so when I'm talking about these 256 number, whether this is the count, bache, this is the count that I can represent this much of number using my what I can say, my one byte when I'm storing integer in my one byte. Then so now the question is, what is the range? Okay, let's say आपने integer बोला है कि you are going to use a unsigned integer, कि आप सिर्फ positive values consider करोगे. Yes, तो कितने, तो what will be your range? Int size is 1 byte and you are going to consider only positive numbers. 256 number So है. 0 to 255. 1 2 0 से yeah, 255. 255 that is your range for 1 byte. अभी हम 1 byte की बात कर रहे हैं. मैंने बोला हम we will only consider positive number, but when I said let's include negative numbers also. So what will happen? Obviously, we are going to use some half. Minus 127 to 126. Very good, bache. Okay, so we are going to use half for negative and half for positive. ठीक है, तो आपकी रेंज क्या होगी अब? आपकी Minus रेंज 127 to 126. Minus 128, 127. minus 128 to minus 1 कितने नंबर हो गए ये? 128 हो गए नेगेटिव के नंबर. Then 0 to 127. ये कितने नंबर हो गए? 128 नंबर हो गए 128 पॉजिटिव. positive में. Done. So if you say, okay, sir, I want to represent integer in 2 bytes, what will be my range for positive numbers? कोई बता सकता है मुझे 2 bytes के लिए? पॉजिटिव में रेंज क्या होगी यार? 0 से 0 to 2 2 raised to power 16 minus 1. Very good. Yes, sir. And if I talk about the negative, minus 2 power 16. Minus 2 raised to power power 15 plus 16. 15 Minus 2 raised to power 50 to 2 raised to power 15 plus minus 1. minus 1. ठीक है बच्चे, तो ये आपकी रेंज होगी. एंड सिमिलरली यू कैन डिफाइन रेंज फॉर 4 बाइट्स एंड ऑल. डन, क्लियर? ओके, फ्लोट की रेंज, पहले हम फ्लोट की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे आज के, कैसे रिप्रेजेंट होता है, देन वी विल डिस्कस. एंड कैरेक्टर की रेंज बताओ मुझे क्या होगी. यस, नाउ यू नो द कांसेप्ट ऑफ ASCII वैल्यूज. व्हाट विल बी द रेंज ऑफ कैरेक्टर? हाउ माय कैरेक्टर इज स्टोर्ड in the background? So 0 to 220 255 होगी. यार हाँ, 0 to 225. Very yes, good. sir. Okay. So we if you remember, just wait. If you remember, we have used this table. So what is this table? ASCII value table, which represent which represent characters using certain numbers. So that means when you are talking about character and you want to find the range of character, so the range finding pattern for character is same as it is for integer, because we are going to store simple integer in the 8 bits. So if it take 1 byte, तो character की range क्या होगी बच्चे? Yes, simple. positive के लिए, only positive के लिए 0 to 255, and negative के लिए, when we consider negative sign also, it's 128 to 127. Done बच्चे? Clear? तो ये अभी सिर्फ आपको जो मैंने अभी इंटीजर की रेंज फाइंड आउट करना बताया है, ये आपको क्लियर होना चाहिए. एंड आई थिंक ये क्लियर भी है. यू आर अ CSE स्टूडेंट, ठीक है, तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है. डन. ओके, नाउ कम टू द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्वालिफायर और मॉडिफायर्स. ओके, there are number of different terminologies related to these terms, so please understand these things. So far I have written int a. So let's say your int is going to take 4 byte. Your int is going to take 4 byte in a system. Okay, but you want to store के नहीं यार 4 byte थोड़े ज्यादा हो रहे. I just want to store it in a 2 bytes.
Okay, so there should be some mechanism using what you can reduce the size of your data type. So for that we have a actually these are the qualifier, these are referred as the qualifier, and these two are referred as the modifiers. Why modifiers? Because they affect the size, they affect the bit storage pattern. डन, हम देखेंगे कैसे है. तो सबसे पहले हमारे मॉडिफायर है बेस्ड अपॉन साइज. इफ यू यूज शॉर्ट स्पेस int a, if normally your int is going to take 4 bytes, if you have written short in front of int, it is going to take 2 bytes. ठीक है बच्चे, डन. दे आर एक्स्ट्रा. ये आपके पास जो जैसे वो गेम में होता है ना, एक्स्ट्रा वेपन्स है, जब आपको जरूरत है तब आप यूज कर सकते हो. डन, टू रिड्यूस द साइज ऑफ. ओके, डन. लेट्स से इन सर्टेन सिस्टम, एक्चुअली दिस इज अ कंपाइलर और सिस्टम डिपेंडेंट प्रॉब्लम. ओके, लेट्स से योर साइज इज 4 byte, बट आपको पता चला कि नहीं यार, आई एम गोइंग टू स्टोर द स्पीड ऑफ लाइट, और आई वांट टू स्टोर सम वेरी लार्ज कांस्टेंट, सो आई मे रिक्वायर 8 bytes. So for that, what I am going to do, I am going to just type long. So now this integer is going to take 8 bytes in the memory. So first modifier we have based upon the size, short and long. I hope you understand the concept. Done? Quite simple, huh? Now second modifier is based upon the sign. अभी मैंने बोला ना, जब where we have calculated this range, whether I want to store only positive number or whether I want to store only negative number. So that thing is divided into signed. Excuse me, sir. जी बच्चे जी, yes. सर कई जगह मैंने देखा सर लॉन्ग 2 बार लिखा रहता है, उस केस में क्या होता है? हाँ, लॉन्ग करेंगे शुभम. ये देखो, मैं अभी इसीलिए मुझे पता था कुछ बच्चों ने एक्स्ट्रा पढ़ रखा होगा, तो ये देखो तुम्हारा लॉन्ग ये आ गया. ठीक है, ये मैंने इसीलिए ऑलरेडी स्लाइड्स ऐड कर रखी हैं, ये हम डिस्कस करेंगे बच्चे, कोई इशू नहीं. ठीक है, ओके सर. हाँ, डन. ओके, नाउ कम टू द सेकंड मॉडिफायर दैट इज बेस्ड अपॉन साइन. सो वन इज साइंड, सेकंड इज अनसाइंड. ओके, चलो लेट्स से योर सीआर नूर. हाँ, नूर सेड सर आई ओनली वांट टू स्टोर रोल नंबर्स ऑफ माय क्लास. सो मुझे पता है कि रोल नंबर क्लास के क्या होंगे, ऑलवेज इन पॉजिटिव. सीआर चेंज हो गया सर. सर जी सीआर चेंज है. ओ यार, हाँ यार, सीआर चेंज है आपका. क्या बात, वो डेमो ट्रेसिंग बनी क्लास में या नोट तन करता था, हैं? चलो कोई बात नहीं यार. सीआर, हु इज न्यू सीआर? चलो दीपांशु सर. दीपांशु. ओके, सो लेट्स से दीपांशु एंड नूर में फाइट हो रही. डन. सो नूर ने बोला नहीं सर, आई वांट टू स्टोर द रोल नंबर्स इन दिस वेरिएबल, लेट्स से rn. डन, rn इज द नेम ऑफ माय वेरिएबल. ओके, सो नूर ने बोला नहीं सर, आई ओनली बिकॉज रोल नंबर इज ऑलवेज इन पॉजिटिव, सो नो नीड टू कंसीडर द नेगेटिव नंबर ना. सो नूर ने यूज किया अनसाइंड. व्हेन यू राइट अनसाइंड, ऑल योर, लेट्स से आई एम जस्ट कंसिडरिंग, हाँ, लेट्स से आप 1 byte ले रहे हो, तो जो भी आपकी पूरी बिट्स हैं बच्चे, 8 की 8 बिट्स, वो सिर्फ नंबर को रिप्रेजेंट करने में यूज होंगी. तो नूर ने बोला कि यार देखो, अगर मैं अनसाइंड कर देता हूं तो मैं इंटीजर में, अगर मेरा इंटीजर 1 byte भी ले रहा है, तो हमारी क्लास के 0 से लेकर 255, लेकिन 256 स्टूडेंट्स को मैं कर पा रहा हूँ. डन. लेकिन दीपांशु आ गया. दीपांशु ने बोला क्या यार तू इतनी वेस्टेज कर रहा है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है. डन, हमें तो सिर्फ हमारी क्लास में 168 स्टूडेंट है ना. चलो दीपांशु भी गलत था, चलो इट्स ओके. हाँ, सो दीपांशु ने बोला नहीं, मैंने तो बच्चों को नेगेटिव साइन भी देने हैं, नेगेटिव रोल नंबर भी देने हैं. तो दीपांशु ने यूज किया साइंड इंट रोल नंबर. तो इसी वजह से नूर को सीआर से हटा दिया गया. डन, क्लियर? ओके, सो व्हेन यू यूज साइंड, आपका जो ये अभी हम करेंगे बच्चे के साइंड रिप्रेजेंटेशन कैसे है. लेट्स से यू हैव अ 8 byte, 1 2 3 4 5 6 7 8. जब आप साइंड यूज करते हो तो योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज रिजर्व्ड फॉर साइन. तो अब आप कितनी बिट्स यूज करोगे? सिर्फ
7 minutes Seven. to सॉरी 7 bits to represent numbers. अब आप इसमें अच्छा इसमें क्या होता है, अगर आपका नेगेटिव नंबर है तो आपकी ये बिट 1 होगी, अगर पॉजिटिव नंबर है तो ये बिट 0 होगी. 8th बिट का सिर्फ यही काम है. ठीक है बच्चे, डन. अच्छा अगर आपके पास 7 बिट्स हैं बच्चे, बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ भी नहीं लिखते तो साइंड इंटीजर होता है ना. हाँ, बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं लिखते तो वो साइंड होता है. ये किसने बोला बच्चे ने, नाम बताओ. सर राहुल. राहुल. तो राहुल में भी आपका 3rd CR हो, क्योंकि राहुल ने हमें बिना किसी वेरिएबल के आंसर दे दिया. डन, क्लियर, ओके. चलो अगर मैं 7 बिट्स के साथ नंबर रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो कितने यूनिक कॉम्बिनेशन बन सकते हैं मेरे पास. 2⁻7 टू 2⁻7 -1, ये कितना बना, -128 टू 127. यही रेंज फाइंड आउट की थी बच्चे हमने जब मैंने यहाँ पर लिखा था. डन. तो ये रेंज इसलिए आई क्योंकि हाफ नंबर हमारे 1 पॉजिटिव के साथ होंगे, नेगेटिव के साथ होंगे, और हाफ नंबर होंगे पॉजिटिव के साथ. और बाय डिफॉल्ट राहुल इज परफेक्टली right and correct about this statement. If you don't write anything, by default your compiler consider that you are intelligent enough that you are using an integer. So when you are considering integer, it is going to store it in signed manner. So हम specially unsigned use करते हैं जहां पर use करना हो. Done? Okay. Now these are the modifiers. हाँ जी बच्चे. जी बच्चे. सर साइंड में सर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्टोर होगा, अनसाइंड में केवल पॉजिटिव स्टोर. यस, साइंड में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्टोर होगा. और बाय डिफॉल्ट भी अगर बच्चे कुछ नहीं स्पेसिफाई करोगे तो भी वो दोनों ही स्टोर होगा. डन, ओके. सो व्हाई दीज आर मॉडिफायर, इन्होंने साइज कम कर दिया, इन्होंने बढ़ा दिया, इन्होंने सर एक बिट. जी बच्चे. सर आपने जो सर साइन का 8 वाला बताया था सर, वो बताइए सर उससे कि उसमें साइन स्टोर होता है. मैं बता रहा हूँ दीपांशु, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे, कोई इशू नहीं. हाँ, मैं एक बार रिपीट कर दूं तो ये दीज आर 2 मॉडिफायर्स. इसमें 8 बिट साइन के लिए रिजर्व हो गई, बिट पैटर्न चेंज हो गया, और इसमें कुछ नहीं हुआ तो बिट. सो दीज 2 थिंग्स आर मॉडिफायर बिकॉज दे आर अफेक्टिंग द बिट पैटर्न एंड साइज. बट दीज 2 आर जस्ट द क्वालिफायर, कॉन्स्ट एंड वोलेटाइल. ओके, पहले इन्हें देख लेते हैं इनका क्या इफेक्ट होता है, उसके बाद ये नीचे देखो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि साइन का क्या इफेक्ट है. ठीक है, ओके. सो कॉन्स्ट एंड वोलेटाइल, लेट्स टेक दिस एग्जांपल. यहाँ पर आ जाओ. ओके, डन. चलो, इंट a इज इक्वल टू 5. इफ आई राइट a इज इक्वल टू 7, क्या होगा बच्चे, व्हाट विल हैपन? A will become 7. A will become 7. A will become 7 na? Overrated. Yes, but Yes, let's say, okay, let's say Gunita. Okay, let's say Gunita want to make a program in which Gunita want to declare a variable and don't want to change. कि मुझसे गलती से भी ये वेरिएबल की वैल्यू 5 से चेंज ना हो जाए. ठीक है, मे बी सम important variable for Gunita. Okay, so what we are going to do, if Gunita is going to write const int a is equal to 5, and in her program when she tries to update this variable, it will going to throw Gunita an error that okay Gunita, you have declared this variable as constant and you are not allowed to update the value of this variable. So that is the use of const keyword बच्चे, समझ गए? डन. जो एक बार वैल्यू आपने डिक्लेयर कर दी है वो फाइनल है, उसके बाद दैट इज नॉट अलाउड टू चेंज. ओके, एंड सेकंड इज वोलेटाइल. वोलेटाइल, अगर आप सिंपल बाय डिफॉल्ट योर वेरिएबल्स आर वोलेटाइल, no need to declare no need to explicitly give this keyword, but when you simply write int a is equal to 5, you try to update its value, it is allowed. So these are the volatile. डन बच्चे? जी बच्चे जी. सर कांस्टेंट वाले वेरिएबल का सर एक यूज बता दीजिए. क्या बताना है बच्चे? सर कोई एग्जांपल, जैसे यूज कहाँ होता है? अच्छा, let's say yes, एग्जांपल बहुत सिंपल सी एग्जांपल है बच्चे. Let's say you want to make a program बच्चे of calculating the area of a circle, और आपने क्या बनाया है, आपने एक वेरिएबल बनाया है पाई. वेट यार, हाँ मेरे जो पेन का ना बैटरी थोड़ी दिक्कत कर रही है. वेट,
सर अभी हमने लिखा था int a equals to 5 और आगे हमने लिखा a equals to 7, तो जबकि हमने a को पहले ही वैल्यू दे दी है तो बाद में क्यों हम उसको अलग करेंगे? नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। लेट्स से int a is equal to 5 लिखा था आपने इनिशियली a को 5 वैल्यू दे दी। लेट्स से आपने गलती से कहीं पर लिख दिया b, या लेट्स से कुछ यहाँ पर 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 - 3 कुछ ऐसा कर दिया। So what this expression is going to do? This is going to update the value of a, yes or no? Yes sir. Okay, but आपने एक ही वैल्यू कुछ ऐसी रखी है जिसे आप चेंज नहीं करना चाहते, then you can use this word। और इसकी एप्लीकेशन क्या है बच्चे? Let's want to find the area of a circle। तो आपने एक कांस्टेंट फ्लोट पाई बना दिया जिसे आपने 3.14 दे दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, अब जब भी आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करोगे? पाई इंटू रेडियस, यही होता है। डन। सो योर पाई वैल्यू इज फिक्स्ड। कोई भी आपसे भी गलती से पाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इवन व्हेन यू ट्राई टू राइट समथिंग। सो दैट इज द यूज ऑफ दिस। ठीक है बच्चे, एंड हाँ, डन। And I have found this very good like difference between constant and volatile. You can just read these things, हाँ, जो है मैंने अभी डिस्कस कर लिया। By default, all the variables are volatile. ठीक है बच्चे, done? So can we change the address of a variable by ourselves? You want to change where you want to store the a particular variable? No sir, if I have defined a variable like integer a equal to 5 and now I want to change the address of a. What do you mean by change the address of a? अच्छा, आपने बोला कि नहीं, अगर एक बार डिफाइन हो जाए, there are some mechanism, some high level mechanism where you can restrict a particular region। आप ये बोल सकते हो कि अगर मेरी ये रैम है बच्चे, तो ओके, जो मेरा प्रोग्राम होगा उसे इस लोकेशन में से ही एड्रेस मिले। लेट्स से आपने 10 MB की जगह फिक्स कर दी कि जो आपकी लोकेशन है वो यहीं से आपका रिजल्ट मिले। यार ये हैंग हो गया। सर जैसे a इक्वल टू पहले 5 किया था, फिर a इक्वल टू 7 किया था, और ऐसे ही हम कर दे एमकरसन a इक्वल टू और फिर कोई ऑक्टा में कोई वैल्यू डाल दे। नहीं बच्चे, नहीं, वैसा नहीं होता हमारे पास। ठीक है, वेट यार, एड्रेस ऑफ वेरिएबल आप इनिशियल लेवल में जब आप उसे डिक्लेयर कर रहे हो, आप सिर्फ तब कंट्रोल कर सकते हो वन थिंग। ठीक है, और उसके लिए भी काफी हाई लेवल प्रोग्रामिंग है, अदरवाइज ये आपके कंपाइलर डिपेंडेंट है। ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग। वेट बच्चे यार, हाँ अच्छा, यहाँ तो चल रहा है, यहाँ क्या दिक्कत है? बच्चे 1 मिनट के लिए ना मुझे ये अपना क्लोज कर फिर मैं दोबारा ऑन करता हूँ उसे। जस्ट वेट, हाँ, आई एम गेटिंग सम इशू। यस बच्चे, अब विजिबल है ये? यस सर, है ना? हाँ, ओके। सो बच्चे, यस, यू आर नॉट अलाउड टू चेंज। अगर आप बोल रहे हो एम्परसेंड कर कुछ उसमें साइज में उसमें एंटर कर दोगे, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, ओके। नाउ कम टू दी, नाउ वी हैव स्टडीड दी मॉडिफायर एंड क्वालिफायर। नाउ अब देखो हमारे पास जो प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं वो क्या है? इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। एक्चुअली इंटीजरल में हमारे पास इंटीजर एंड कैरेक्टर दोनों आते हैं। देन इंटीजर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू साइंड, अनसाइंड, और उसके बाद सिंपल इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट। सिंपली
unsigned int, unsigned short int, unsigned long int. सिमिलरली कैरेक्टर, साइंड कैरेक्टर, अनसाइंड कैरेक्टर, और हमारे पास फ्लोट होता है, डबल होता है, लॉन्ग डबल होता है। ठीक है बच्चे, ये चीजें अभी हमने इन पर फोकस नहीं करना। डन। सो दैट इज योर फाइनल जो हमारे पास है, जो आफ्टर स्टडीइंग दीज क्वालिफायर्स एंड मॉडिफायर, दिस इज द नॉमेनक्लेचर। Okay, now come to the question of student who asked about the long. Okay, so as you can see, C में भी हमारे पास different time पर changes हुए हैं बच्चे। ठीक है, तो उसमें जो latest changes के according है ना, if you write even simple short a is equal to 5, this is equivalent to short int a is equal to 5, because short is only allowed using with integer। तो अगर आप शॉर्ट यूज कर रहे हो तो इंट लिखो। सो दीज ऑल आर द सेम इन डिफरेंट कंपाइलर एंड इट इज इक्वलेंट टू दिस शॉर्ट इंट। ठीक है बच्चे, डन। एंड सिमिलरली अनसाइंड शॉर्ट इंट इज इक्वलेंट टू अनसाइंड शॉर्ट इंट। सिमिलरली आप इंट लिखो, आप अकेला लिखो, यू कैन राइट साइंड इंट a is equal to 5. ठीक है, they are all equal. Similarly, long. Now in some compiler, again there is a compiler dependent issue. Okay, in some compiler there is a data type जिसका नाम उन्होंने long रख दिया and which is going to take at least 32 bits means 4 bytes. At least 4 bytes लेती है, लेकिन but if you are using your 64-bit system then it is going to take 8 bytes. Okay, done. And further they have modified it to long int, और long भी आ जाता है उसमें सिंपल। ठीक है, these all are equivalent to this long। ये हमारे पास बच्चे C++11 जो कंपाइलर है, 11 ऑनवर्ड्स कंपाइलर है, ये सिर्फ उसमें अलाउड है लॉन्ग का जो कंसेप्ट आया हमारे पास। एंड इफ यू डिक्लेयर दिस, योर सिस्टम डजंट मैटर यू आर यूजिंग विच कंपाइलर और यू आर यूजिंग विच ऑपरेटिंग सिस्टम और आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इट इज गोइंग टू टेक 8 बाइट्स टू स्टोर दिस इंटीजर। ठीक है बच्चे, सो दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस टेबल बिकॉज दे ऑल आर इक्वलेंट। आप शॉर्ट इंट लिखो, आप अकेला शॉर्ट लिखो, आप लॉन्ग लिखो, आप लॉन्ग इंट लिखो, दे आर ऑल डूइंग द सेम टास्क। ठीक है बच्चे, सो हाँ जी बच्चे। सर अभी आपने बताया सर साइंड a इक्वल टू 5 लिखे तो a में सर 5 हो जाएगा ऑटोमेटिक, वो इंट ले लेगा। और मान लीजिए अगर शॉर्ट a इक्वल टू 5.5 लिखते हैं उस केस में बच्चे, उसमें फ्लोटिंग पॉइंट में साइंड अलाउड नहीं है। ये देखो, अच्छा, फ्लोट के साथ हम सिर्फ ये लॉन्ग वाला यूज कर सकते हैं, जो अभी हमने ये पढ़े हैं ना बच्चे, ये वाले शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड, अनसाइंड, कांस्टेंट, वोलेटाइल, सॉरी इन चारों में से, ये तो क्वालिफायर हो गए ना, इन चारों में से फ्लोट के साथ सिर्फ लॉन्ग अलाउड है, दैट्स ऑल। तो सर लॉन्ग a इक्वल टू 5 लिखेंगे तो सर वो इंट लेगा, और लॉन्ग a इक्वल टू 5.5 लिखेंगे तो फ्लोट लेगा। फ्लोट लेगा। ये सिर्फ पावर बच्चे आपके पास है जो हमारा C++ का कंपाइलर 11 ऑनवर्ड्स है जनरेशन में। ठीक है, हमारे पास अलग अलग बच्चे जो आपके जैसे आप कंपाइलर उठाते हो ना, टर्बो सी, वो C99 के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कुछ कंपाइलर C90 के ऊपर भी बेस्ड है। तो ये वो वर्जन है जहां पर लास्ट टाइम यहाँ पर मॉडिफिकेशन की गई। ठीक है, ये हम देखेंगे बच्चे जब। हाँ जी बच्चे, यस। सी में क्या एप्लीकेबल है फिर? सी में बच्चे मैं इसीलिए मैंने ये वाली जो नोटेशन मैंने अभी क्लास में पढ़ाई है ना, ये इक्वलेंस वाली, जो पुराने और सभी नए कंपाइलर में इक्वली अवेलेबल है। तो अगर आपको पता है कि आप इंट के साथ खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग विद इंटीजर एंड यू वांट टू मेक इट शॉर्ट, देन सिंपली राइट शॉर्ट इंट। नो नीड टू use a shortcut of short a is equal to 5. Yes, it is allowed, but it is simple to remember and easy to understand for the third person who is reading your program. जो ये सेंटर वाली लाइन है, that is true for all the compilers. Okay? Yes. और बच्चे, yes बच्चे, My question is short allowed. बच्चे 1 by 1 बोलो, क्वेश्चन बोलो।
फ्लोट में क्या नहीं अलाउड? सर फ्लोट में सिर्फ लॉन्ग के अलाउड है, शॉर्ट साइंड और अनसाइंड क्यों नहीं अलाउड? यस आदित्य, अभी क्वेश्चन आंसर है बच्चे, अगर आप मुझे अभी सभी चलने दोगे तो इसका आंसर है ये, कहाँ गया ये वाला, हाउ फ्लोटिंग पॉइंट्स आर स्टोर्ड। ये पूरा डिटेल्ड है हमारा कि कैसे स्टोर होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें बाकी चीजें क्यों नहीं अलाउड। ठीक है, ओके सर। हाँ ओके सर, डन, चलें आगे। ओके, सो दिस इज दी बच्चे, ये मेरे पास एक टेबल है, अभी हम ये डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि प्राइमरी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैरेक्टर, अनसाइंड कैरेक्टर, साइंड कैरेक्टर, इंटीजर। ओके, now we have different compilers who are using 2 bytes to store integer and 4 bytes. So this is the range with respect to 2 bytes and this is the range with respect to 4 bytes. And these are what? These are my format specifiers. कहाँ पर use होते हैं ये format specifier? वैल्यू स्कैनर, printf में ना, yes. एंड अगेन, हाँ मैं अभी आपको कुछ बता रहा हूँ, देन अगेन यूजिंग अगर आप नए कंपाइलर यूज करते हो, लेटेस्ट कंपाइलर यूज करते हो, देन इफ यू टाइप %d व्हाट यू विल गेट? integer, and there you can also use %i, that is also for integer. Yes. Okay, so जो ये %i है बच्चे, ये पुराने जो जीसीसी के हमारे स्टैंडर्ड कंपाइलर थे पुराने वाले, उनमें अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब ये कुछ नए कंपाइलर्स हैं जिन्होंने यू कैन सिंपली राइट %i बिकॉज %f हम किसके लिए यूज करते हैं? फ्लोट के लिए, तो दैट इज परफेक्टली फाइन। सो डजंट मैटर, यू आर गोइंग टू यूज printf %i, तो आप a प्रिंट करोगे तो int a is equal to 5 है आपका, तो क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पर? यू विल गेट 5 as a output. Okay, so this is the range of different I think integer और character के लिए आप easily range find out कर सकते हो, and similarly for long integer also. The only issue is float वाला, कि float के लिए जी range कैसे find out करनी है। Done? Clear? Float के लिए range find out करने से पहले वही first you need to understand how the floating point numbers, or like say you want to store 3.25, how this number is stored in binary. First you need to understand this. Okay, rest this is simple mathematics. You know the formula, -2 raised to power n to 2 raised to power n sorry, -1 ठीक है, that is the formula for signed, and 0 to 2 raised to power n -1, that is the formula for unsigned. ठीक है जी, now let's start. Now my first question is, how integers are stored in memory? Now again some student is going to say, sir, we have 2 types of integer, only positive integer, then we have a negative integers. Okay, so first we are going to talk about the positive integer. I know I think everyone know about how they store, but let's say we are going to just see a very simple example. Okay, let's say you have declared a variable int a, and a की value आपने क्या दे दी? 12. Okay, what is the binary equivalent of 12? बताओ जल्दी, what is the binary equivalent of 12? 1100. 1100. Okay, Yes, these sir. are the least significant bit. 4 least significant bits आपने बता दी मुझे, that is the binary equivalent. Perfectly fine, done. But let's say you are using 4 bytes to store this integer, तो होगा क्या? जो आपकी सब, okay, let's say you have declared int a is equal to 5, और आपके कंपाइलर ने क्या किया? 202, 203, 204 एंड 1 2 3 4 4 बाइट्स उसने रिजर्व कर दी। किसके लिए रिजर्व कर दिए? a के लिए। Then you have said a is equal to 12. So what is going to happen? So you know that binary equivalent of this is 0, or sorry, 1100. Okay, so you are going to represent your number in 32 bits, बच्चे, because we are using 4 bytes. First byte, second byte, third byte, 4 byte. जहां पर भी हमारा नंबर खत्म हो रहा है उसके बाद हम सारी पैडिंग कर देंगे 0 के साथ. Okay, so yes,
your this location is going on 202, this byte is going to store on 203, 204 and 205. तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि हाउ योर नंबर इज गोइंग टू स्टोर. यहाँ पर आपका नंबर आएगा 00001100 और इनमें सभी में जीरोस होंगी. ओके, यस, दैट्स व्हाट हैपन व्हेन यू स्टोर अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर इन द मेमोरी. ठीक है बच्चे, कोई डाउट हो? 258 का ये आपके लिए एक्सरसाइज है बच्चे. 258 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? Quickly. So 1000. बताओ दोबारा क्या है? 1 What is the binary equivalent of this? 150. Sir, 17010. Okay, मुझे किसी बच्चे ने बोला 17010. मैं उसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ. I don't know. हाँ. So now you can just check how we are going to store these. ये आपके लिए दो एक्सरसाइज के लिए हैं. So you need to rewind your number system exercise which I have shared with you. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे स्टोर हो गया. Done. So that is how our positive numbers are stored. Yes. सर जो आगे के जीरो हैं सर वो हायर एड्रेस में मतलब फीड हो रहे हैं. Yes, वो हायर एड्रेस में फीड होते हैं सर. लेकिन नंबर तो आगे से स्टार्ट होगा तो वो लोअर में होने चाहिए ना फीड. जीरो है क्या उसमें? दोस्त ये देखो ना, यहाँ पर जो एड्रेसिंग है वो ऐसे है 200, 201, 202, 203. अगर आप एड्रेसिंग ऐसे ले रहे हो 200, 201, 202, 203, देन आपका जो ये वो जो लोअर मेमोरी एड्रेस है वो यहाँ से स्टार्ट होगा लाइक दिस. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बच्चे. सर इसमें हमने जो 202 से स्टार्ट क्यों किया था वो बताना एक बार. जस्ट रैंडम बच्चे, मैंने रैंडमली कोई मेमोरी लोकेशन ली है, कोई भी हो सकती है वो. दैट्स जस्ट अ रैंडम, कोई इशू नहीं है. यहाँ मैंने 200 से स्टार्ट कर दिया. दैट इज अ कंपाइलर डिपेंडेंट. हमें नहीं पता आपका कंपाइलर वेयर इट इज गोइंग टू स्टोर योर ए. ओके, आई एम जस्ट चूजिंग इट रैंडमली. ओके सर. हाँ, एंड इट ऑलवेज. हाँ जी सर, अगर हमने सर किसी मतलब एक प्रोग्राम में एक कोड में कहीं पर भी एक वेरिएबल सर डिफाइन कर, जैसे इंट a इज इक्वल्स टू समथिंग वैल्यू डिफाइन कर दी और उसका कहीं यूज नहीं किया है, फिर उसके बाद सर उसको कमेंट आउट कर देते हैं, तो क्या अभी भी वो स्टोर है मेमोरी में? देखो, चलो आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने शायद एक क्लास में दिया था बच्चे. डन. दिव्यांश. ओके, सो योर क्वेश्चन इज यू फर्स्ट. दिव्यांश ने एक प्रोग्राम लिखा, उसमें दिव्यांश ने एक int a is equal to 5 लिया लेकिन इसे यूज नहीं किया. डन. यस सर. इसको कमेंट कर दिया. यस सर, अब कमेंट कर दिया, इसका कोई यूज तो नहीं, तो सर क्या अभी भी स्टोर है? बताओ दिव्यांश क्या आंसर होगा इसका. यस, एनीवन एल्स जो आंसर देना चाहेगा. कमेंट वाली लाइंस क्या करता है? मेरा कंपाइलर कमेंट वाली लाइंस को एग्जीक्यूट करता है. स्टोर नहीं होगा. कंपाइलर इज नॉट गोइंग टू इवन एग्जीक्यूट दीस लाइंस बिकॉज़ दे आर ऑलरेडी कमेंटेड. मेरा कंपाइलर सोचेगा कि ओके ये तो यार वैसे ही आपने अपनी नॉलेज के लिए लिख रखा है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ माय प्रोग्राम, सो इट इज गोइंग टू रिमूव दिस. ओके, यस, सो नो मेमोरी. पर सर डिक्लेयर करते समय तो वो स्टोर हुआ होगा ना. पर नहीं बच्चे, अगर आपने उसे कमेंट ही कर दिया पहले तो आपके कंपाइलर ने ये लाइन रीड ही नहीं ना करनी. आपका कंपाइलर ये वाला कमेंट देखेगा ना. दिस इज द वे हाउ यू कमेंट. Your compiler is only going to see that if you got 2 backslash, that means after this we are going to have something which is comment. So that is not part of my executable program. So your compiler is not going to read this. Okay sir. Okay. Yes sir. Yes बच्चे, कोई और डाउट हो? डन. चलो जल्दी से ये कर लेते हैं. लास्ट है बस. 4 है कि 2 है? क्या बच्चे? सर इंट 4 बाइट्स है कि 2 बाइट्स? मतलब बच्चे इट इज कंपाइलर डिपेंडेंट और योर मशीन डिपेंडेंट. हिमांशु. ओके, कुछ कंपाइलर्स हैं वो 2 बाइट्स लेते हैं और कुछ कंपाइलर्स हैं जो लेटेस्ट कंपाइलर है, जो आपका कंपाइलर है वो 4 बाइट लेगा. तो कैसे चेक करना है कि 2 बाइट है या 4 बाइट है? हमारे पास एक ऑपरेटर होता है साइज ऑफ ऑपरेटर. ठीक है, साइज ऑफ इंट. ठीक है, क्या करना है आपने? प्रिंट एफ
%d साइज ऑफ इंट, इसे प्रिंट करवा कर देखना और यहाँ पर इंट, फ्लोट, कैर, लॉन्ड, डबल कुछ भी चेंज करना, ये उसका साइज दे देगा। दिस इज अ ऑपरेटर, इनबिल्ट ऑपरेटर। अगेन गाइस, दिस यहाँ पर ये क्या है बच्चे, व्हाट आर दिस? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स। और ऐसी ब्रैकेट्स वाले को क्या बोलते हैं? बट रिमेंबर साइज ऑफ इज अ ऑपरेटर, इट इज नॉट अ फंक्शन। साइज ऑफ हमेशा ऑपरेटर्स के काउंटिंग में आता है बच्चे, ठीक है। सो साइज ऑफ में आप कुछ भी इंट लिखोगे तो ये इंट का साइज दे देगा, फ्लोट लिखोगे फ्लोट का साइज दे देगा। आपने यहाँ पर लिखा है इंट a इज इक्वल टू 5 और आप साइज ऑफ के ब्रैकेट्स में a पास करोगे तो ये a का साइज दे देगा। कैर c, और यहाँ पर आपने c पास किया तो इट विल रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स रिजर्व्ड बाय योर कंपाइलर फॉर दिस वेरिएबल और फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा टाइप। तो इसके ये यूज कर बच्चे आप चेक कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है बच्चे, थैंक डाउट है यू। कोई पूछो। ओके, सो वाइंड अप करें यार, या 10 मिनट और ले लो? चलो वाइंड अप करते हैं। ओके, वेयर इज दिव्यांश? न्यू सीआर। यस हाँ जी दिव्यांश, हाँ आपने बच्चे मुझे मैसेज दीपांशु दिव्यांशु, सर, सॉरी दीपांशु। दिव्यांशु दिव्यांशु दिव्यांश आपने मुझे मैसेज कर दिया ना बच्चे अपना नंबर? यस दीपांशु। दीपांशु, अच्छा मैं दिव्यांशु, ठीक है बच्चे, मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर देना, तो जो भी कम्युनिकेशन होगी मैं आपसे करूंगा, ठीक है। ओके हाँ ठीक है बच्चे, हाँ डन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन हॉलीडे, ठीक है। तो बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे। एंड रिमेंबर ऑन फ्राइडे वी हैव आवर फर्स्ट क्विज, ठीक है। और जो भी हम ये कर रहे हैं ये इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर क्विज। एक्सक्यूज मी सर क्विज में क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, मतलब प्रोग्राम्स वगैरह होंगे कि ऐसे मतलब थ्योरी टाइप? बच्चे फर्स्ट क्विज आपका